हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन दे आर डन पर मंथ. First of all, let us have a quick look on this first question. Uh, Before started, let me tell you that at the end of the video, I'll give you some questions and their answers. So first of all, you should learn how to solve them, and then you'll try yours by yourself. But before going to directly to this question, first of all, I would like to tell you how to solve it, teach you how to solve it. You gotta remember this formula because this is gonna help you very much in your exams. Uh, it's not a formula. It's a kind of trick, uh, which if you learn it, it'll help you on a big basis, not only in the form of monthly, but uh, whenever you solve each question regarding interest on drawings, whether it is quarterly or monthly, it's gonna help you very much. uh, it's kind of this. I'll explain you. You just gotta remember this or by heart this. uh, um, Here, and and beginning. Okay, so to learn this, here's the formula. You should learn this chart also, in which there's to solve this interest on drawings questions, we have to first learn this trick and the time period in which we have to first solve the total drawings, and then the interest on drawings can be calculated further. uh, Monthly, quarterly, uh, situations, uh, beginning में. If it is monthly, then 6.5 is the average time. um, and में 5.5, and in the middle both of both of them have the 6. The average time for the middle of each quarter, if they withdrew in the middle of each quarter or even in the middle of each month, it will be the average time will be the 6. Then um, beginning and end. Now, seeing this quick formula, you can make this chart too, but always remember, at the time of calculating them, you gotta uh, do this into 12 when you are calculating total drawing, because it's monthly. And when you are talking and when we are talking about quarterly, each quarter has 4 parts, right? So we have to into 4. And so in the beginning of quarterly, at the beginning of each quarter, the average time to be calculated during calculating interest on drawings will be, let's see this
formula secret. Beginning, quarterly, so it'll be now it'll be see the quarterly line and in the beginning 7.5. So we'll write here 7.5, and let's see the ending. And if he or she withdrew at each end of the quarter, then it will be quarterly at the end of each quarter, then it will be 4.5. So right here 4.5. Okay, now let us again have a look on our question. Let's read it out. Calculate the interest on drawing of Sri Ganesh at the rate 9% per annum for the year ended 31st March 2007 in each of the following alternative cases. केस ए, बी और सी है। अब ये तो भाई बहुत इंग्लिश की बात, ठीक है, इंग्लिश में बात कर ली। अब आते हैं अपन मुद्दे पे, काम की बात पे। इफ़ यू पीपल विल छोड़ो, अगर तुम लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आई कैन गारंटी यू माई गाइस दैट तुम लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे because of this question zone. If you are from MP board, then this question comes many times in the exam for 3 marks. Okay, and it is also very important question for CBSE students. Case A देखते हैं. If you withdrew ₹4,000 per month in the beginning और 9% पर annum में, परसेंट निकालते तो अपन में 100 आ जाता है, सब है। ये चार्ट अपन ने देखा, किसमें क्या करना है, एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम क्या होता है उसकी भी टेंशन मत लो, वीडियो के एंड तक तुम्हें मैं ट्रिक्स बताऊंगा, वो सॉल्व करोगे तुम आज कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। सो केस ए के हिसाब से देखा जाए तो वो पर मंथ के बिगिनिंग में 4,000 रुपये निकाल रहा है। सो यहाँ जो अपन ने ये देखा, ये यहाँ पे बनाओगे तुम एग्ज़ाम में, शुरुआत में कोई सा भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग क्या करोगे, 1 2 3 4 हिंदी बनाई, ऐसा याद कर लो, 45 55 65 और 75, इसमें भी पॉइंट लगा दिया है ना, डेसिमल्स लगाए। अब इसके क्वार्टरली का बड़ी लाइन, मंथली की छोटी लाइन, क्वार्टरली मंथली। ये चीज़ अगर तुम 3-4 बार बनाना सीख जाओ, मेरे साथ कोऑपरेट करो इस वीडियो में, सो यू पीपल विल वेरी इजी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ अब हमें पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए टोटल ड्राइंग्स निकालना पड़ेगी। इन दिस केस टोटल ड्राइंग्स इक्वल्स टू, कितने निकाल रहा है वो केस ए में, 4,000 पर मंथ। तो 4,000 इंटू टोटल ड्राइंग्स का टाइम कितनी बताई थी मैंने, पर मंथ में 12 की, हर मंथ में, हर साल में 12 महीने होते हैं। तो 4,000 इंटू 12, ये आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स, विच विल बी इक्वल्स टू, कितना होगा, चलो ऐसे करके बताता हूँ, 12 इंटू 4 हो गया 8 4 48,000। अब टोटल ड्राइंग्स आ गई है ये, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आराम से निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या है, सबसे पहले अपन रखेंगे टोटल ड्राइंग, इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ एक्चुअली। कितने परसेंट
निकाला पर ईयर 9% पर ईयर। तो उस अब यहाँ पर ये एवरेज टाइम का क्या काम रहता है वो भी बताता हूँ। अगर ये ईयरली निकालता तो ऐसे ही निकालते तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता 9/100। बट इन दिस केस हमें ये कह रहा है क्वेश्चनर कि वो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले, पर मंथ में 4,000 रुपये निकाले, इससे ऐसे करके निकाले। तो ये कन्फ्यूजन्स को हटाने के लिए और सही आंसर डिराइव करने के लिए यहाँ पर अगर इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मैंने पहले बताया था यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंडिंग एंडिंग और बिगनिंग बिगनिंग है ना। ये बाय हार्ट कर लिया तो तुम्हारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पक्का हो गया, बस ये याद रखना है। और ये 12 मंथ्स कहाँ पे रखना, 4 into 4 कहाँ पे करना है वो याद रखना है। और यहाँ पे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, राइट, क्या है, बिगनिंग ऑफ पर मंथ। सो इट विल बी बिगनिंग ऑफ पर मंथ 6.5 अपॉन कितना आएगा, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अब हमें इसको सॉल्व करना है जैसे ऐसे करके। यहाँ जो आंसर आएगा वो आप लिख देंगे तो ये आ जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आप सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है, ऐसे करके और फिर ऐसे करके बाकी आप सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अब ये जो हमने सॉल्व करा क्वेश्चन, इसके बाद ऐसा कैसा एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका आंसर सॉल्व करके देखिए और उसके आंसर्स में बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड में दे रखूँगा। अभी केस ए हुआ है, केस बी में क्या होगा, वो एवरी मंथ के एंड में निकाल रहा है। एवरी मंथ के एंड में देखिए इसको आप, मैं टाइम ले रहा हूँ वीडियो में, लेकिन अगर इसे अच्छे से समझेंगे तो एग्ज़ाम तक कभी नहीं भूलेंगे। मंथली एंड में, सो इट इज 5.5 एवरेज टाइम। तो पहले टोटल ड्राइंग केस बी की भी देखिए चेंज हो रही है क्योंकि 5,000 पर मंथ निकाल रहा है, 5,000 पर महीना निकाला, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 5 60, पीछे 0 3 आती है। अब ये आ गया टोटल ड्राइंग्स के बाद हम जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला मैंने जो बोला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू जो परसेंटेज दे रखा है इसका निकालना है। इस केस में परसेंटेज 9 है और 100 इंटू, यहाँ पर केस दूसरा है, केस बी में एवरी मंथ के एंड में। सो एंड के हिसाब से फिर ये देखिए मंथली और एंड का है 5.5 अपॉन कितना आएगा, 5.5 अपॉन कितना आएगा 12। बिकॉज फिर से बार बार नहीं बोलना पड़ा मुझे, ईयर में 12 महीने होते हैं। अब आप ये अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। टोटल ड्राइंग से कोई आप 60,000 फिर इंटू 9/100 इंटू 5.5/12 ऐसे ऐसे कर लें, आंसर डिराइव हो जाएगा इंटरेस्ट ड्राइंग। फिर सी केस सी में हम देखें, इफ ही विड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला केस बहुत सिंपल है दोस्तों, लड्डू क्वेश्चन। टोटल ड्राइंग
टोटल ड्राइंग हमें पहले से दे रखी है कि 72,000। अब हमें करना कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं देखा। और ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर जब भी साल भर का बता रखा हूँ तो हमें खाली 9/100 करके नॉर्मल जैसे इंटरेस्ट होता है उसी के कुछ करके सॉल्व करना है, आंसर डिराइव करना है। ये हो गया सॉल्व। अगर ऐसे करेंगे तो आपका सब कुछ सॉल्व होएगा। और मान ओके फ्रेंड्स, जिस तरह अपन ने दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करा अभी केसेस के थ्रू, वैसे ही थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है उसे वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें और उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मैं आपको कमेंट सेक्शन में सही आंसर्स बता दूंगा। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दें कि वीडियोस में क्या क्या कमियां थी, ताकि मैं अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में उन चीज़ों को पूरा कर सकूं और अपने कंटेंट को और अच्छा बना सकूं। थैंक यू। और प्लीज़ प्लीज़ लाल बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और अप्रिसिएशन मिलेगा, ताकि आई कैन कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।